सलीम कॉल्ड मी पहले दिन, उन्होंने बोला कि ये गाना राहत गाने वाले थे, लेकिन वी सजेस्टेड कि आप गाओ बिकॉज ये इंडिया के फ्लैग के ऊपर गाना है, तो वी कैन नॉट टेक सम अदर कंट्री का सिंगर टू सिंग। अरे यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे घूमेगा, आपको लगेगा किशोर दा गा रहे हैं। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते और भैया ये कुत्ता अमित जी आ गए एकदम से, अखई के पान बनारस वाला अलग आ गया, एकदम कैरेक्टर अलग चेंज हो गया। कि मैं कभी भी अपने घर में रियाज नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मेरी गायकी है, वो दिल कमड़ा डूब डूब जावे, अब ऐसा आप अपने अपार्टमेंट में बैठ के नहीं गा सकते। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, टैलेंट आपको भगवान की तरफ से मिला है, लेकिन आपके मेहनत के साथ में, आपके डेडिकेशन के साथ में, आपके बिलीफ के साथ में लक फैक्टर होना बहुत जरूरी है। और मीडिया आपको ब्रश ऑफ कर देती है। मीडिया इज द मोस्ट रूथलेस पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज जब तक आप स्टार नहीं हो तब तक दे डोंट कम टू यू। कृष्ण सदा सहायते, सहाय है हमेशा, तो आपके साथ हमेशा सहायता। कृष्ण बोलो, आप कोई भी भगवान बोलो, आप अल्लाह बोलो, आप वाहिगुरु बोलो, कोई भी बोलो, जिनको भी आप बिलीफ से मानते हो, जिनको आप भगवान मानते हो, वो आपके साथ आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। Where dreams take flight, voices are bright, unique and light, creating new heights, unfolding the stories of each human life. It's heartfelt and casual with no perfect goal. All I wish for is to touch every soul. Seema, 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 जिसकी कोई सीमा नहीं। Let the beauty of what you love be what you do. This quote from Rumi truly captured the journey of our star guest today, Krishna Beura, a voice that found its way from humble beginnings to the hearts of millions through pure love for music. Born in Odisha and embraced by Bollywood, Krishna's story is one of Riya's resilience and remarkable range. He didn't take shortcuts. He built his path one note at a time, trusting the power of feeling over flash, honesty over hype. That's why his song don't just play, they stay. From the starring Maula Mere Lele Meri Jaan in Chak De India to the soul-soothing Main Jahan Rahun in Namaste London, his voice has given Indian cinema moments we return to whenever we need courage, comfort, or quiet. Working with maestros like Salim Suleiman and Himesh Reshammiya and singing across languages, Hindi, Odia, Punjabi, and more, Krishna brings a Sufi soulful depth that turns melodies into memories. On stage and in the studio, he reminds us that great art is simple. Feel truly, sing honestly, and let the song do the magic. He continues to evolve, inspire, and prove that timeless music is made by a timeless heart. Today, we are honored to celebrate the artist, the craftsman, and the humble human behind the unforgettable voice. Please welcome, with all your love, Krishna Beura. Thank you for coming to the world of Seema Jiski Koi Seema Nahi. I'm really feeling glad. Thank you. Thank you for inviting me here, and I'm sure it is going to be very exciting today. Absolutely. It's really my pleasure. Thank you. Yeah. So the first question is a very, question about your childhood and the beginning. It says that where did music first find you? And when you felt this isn't just a sound,
this is who I am. देखिए मेरे को ये हमेशा से फील होता है कि मैं आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम द पास्ट बर्थ, समथिंग हैज टू डू विद माय पास्ट बर्थ. आई बिलीव इन पास्ट बर्थ, कर्मा एंड ऑल दीज थिंग्स. I do तो believe. हाँ, तो कोई चीज़ ऐसी है जो कि एकाएक नहीं आ जाती ज़िंदगी में, क्योंकि सुर ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर भगवान डाल के भेजते हैं. आई बिलीव एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू एनीथिंग, यू नो, इफ दे वांट, बट सिंगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगिंग के लिए आपके वोकल कॉर्ड को वो फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ता है. तो समहाउ पीपल हु आर ब्लेस्ड विद गॉड्स दिस थिंग, यू नो, उन्होंने वॉन्ड मारा होता है सर पे ऐसे कि ये लोग गायक बनेंगे, तो ये लोग ही गा सकते हैं. बाकी म्यूज़िक बजाना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, प्रोग्रामिंग करना या साउंड इंजीनियर बनना, यू नो, ये सब चीज़ें बहुत पॉसिबल है. तो आई फील कि म्यूज़िक वाज देयर इन मी. मैं उस ट्रांजिशन वाले ज़माने से हूँ जहाँ पर चित्रहार आता था, अगर आप रिमेंबर, अगर आपको याद हो. तो फिल्म का कोई प्रोमो या कोई गाना उससे पहले नहीं आता था. आजकल तो आप देखेंगे 5-5 साल के बच्चे आज की रात कर रहे होते हैं डांस, लेकिन वो नहीं है, वो ज़माना नहीं था. हम जाते थे पिक्चर में ही हमको पता चलता था कि इसमें 5 गाने हैं, वो गाने याद हो जाते थे, बाहर आता था. तो मेरे फादर ने डिस्कवर किया कि यार ये सिंगर बनना चाहिए इसको. ही बीइंग इन द एयरफोर्स नेवर एवर, यू नो, told me या put any pressure on me कि भाई नहीं, आपको जाना चाहिए एयरफोर्स में या डिफेंस में जाना चाहिए. he has 3 sons. तो he said कि I have a plan B and plan C. तुम नहीं बने तो कोई बात नहीं, ये लोग संभाल लेंगे How तुमको. beautiful. लेकिन you go and try for singing. My mom used to think differently. तो उनके बारे में भी जिक्र करेंगे. तो ये जो ना, ये बहुत यूनिक है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बंगाल में, बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाल. सो देयर दे विल बी सेइंग दैट या यू डू एवरीथिंग, बट पढ़ाई ज़्यादा करो और बाद में तुम कुछ और बनोगे. बट सिंगिंग्स एंड ऑल आर कल्चरली, बिकॉज यू आर वेरी अवेक, सो यू डू इट. बट इन योर केस, योर फादर सेइंग, that means he recognized your talent, and that's a huge good fortune. And I am absolutely clear that what you are saying, ki it is also a past connection. Correct. Somebody supported you in such a way that today you have flourished, and it's really amazing. Whatever I am today is because of my father, because he always believed that I should become a singer. एंड जैसे आपने अभी वेस्ट बंगाल की बात की, कोलकाता की बात की, और मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, आपको पता है उड़ीसा में क्या है कि एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पढ़ाई करो, आईएएस ऑफिसर बनो. बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स उड़ीसा से हैं. तो वो कहते नहीं, आईएएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सब क्या करोगे, नाच गाना ये सब ना. आप लोगों में तो चले एक्ट पढ़ाशोना करो, একটু গান করো, but it's fine. Music is in your DNA. Taking as a profession for a Bengali, is like music is in the DNA, you know. And जैसे हर घर में आप कहते हो ना कि किसी घर में मिक्सर है, फ्रिज है, ये सब यूटिलिटीज होती हैं, तो हारमोनियम जरूर होगा बंगालियों के घर में. और उससे ज्यादा थोड़ी ज्यादा सीरियस है अगर म्यूजिक में, तो तबला और तानपुरा है ना. मैं यू कैन रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I myself So, ये had चीजें होती हैं. तो उस वजह से हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में इतना प्रोत्साहन नहीं था, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट माय डैड ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ सिंगर, एंड ही हैड दैट ट्रस्ट ही हैड. तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह मैंने यू नो गाना गाया, अवार्ड्स जीते, लड़कियों का दिल जीता, और फिर समझ में आया कि नहीं यार, ये प्रोफेशन समथिंग आई शुड गो एंड परसू. how तो beautiful. करना चाहिए मुझे. तो मैट्रिकुलेशन वहाँ से करने के बाद फिर मैंने दुबई का रुख किया. दुबई पहुँचा आई वॉज एन आरजे ऑल्सो विथ हम FM. वो मैंने किया, और शाम को शेरेटन के लिए गाता था. तो यही मेरा जर्नी है. So जब सिंगर किसी शो में आए, उनकी सिंगिंग से शुरू करना चाहिए शो. जरूर. तो फिर आप गाइए क्या जो गाऊं? आपको पसंद है. अगर आपके दिल में कोई चीज़ है, कोई वो या नया गाना, जो भी आपको गाना है, ठीक है. आप मेरी लाइफ में कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं आपके यहाँ से यू नो, बड़ी कुछ नहीं है. मुझे एक बार शाहरुख खान साहब को मिलना है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है लाइफ की. तो आप गाने जब गाए थे उनसे नहीं नहीं मिल पाए? पाया. लोगों को लगता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को लगता है कि आपने इतने बड़े एक्टर के लिए गाया तो आप डेफिनेटली मिलोगे. अरे इतने साल हो गए उस गाने को, मैं कभी शाहरुख खान सर से नहीं मिल पाया. आई वुड लव टू मीट दैट मैन, ही इंस्पायर्स मी अ लॉट. तो आप डायरेक्टली अपील कीजिए ना. मैं कर ही रहा हूँ. बस. अगर आपके फैंस है भैया, प्लीज टैग शाहरुख खान सर ऑन दिस पर्टिकुलर यू नो पॉडकास्ट एंड टेल हिम कि कृष्णा वांट्स टू मीट यू. प्लीज एक बार सर, तीजा तेरा आई वुड लव टू रंग मीट है यू ना. वन डे. आप गा दीजिए उनके लिए तीजा तेरा. ठीक है, ऐसे ही गा देते हैं. चलो. तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फिर ले तू चाहे नजरें चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे, शर्त लगा ले, तीजा तेरा
था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान। उफ, थैंक यू। okay, so we all have grew up like, at least मुझे जितना याद है कि हम साउंड सुनते हैं, साउंड्स के बाद म्यूजिक आते हैं। म्यूजिक आता है। तो क्या है कि हमारी मेमोरी में, इमोशनल मेमोरी में बहुत सारे साउंड होते हैं जिसके जरिए हम बड़े होते हैं। जी। तो आपके दिमाग में कोई जहन में ऐसा है जैसा कि एक साउंड बहुत ही ज्यादा आपको अट्रैक्ट, लाइक आई कैन टॉक अबाउट माई मॉम हु इज टू सिंग all the time, and she used to sing very very well. I remember that, and I also remember that how my mom and dad used to fight a lot. So you have something which is really, you feel that these sounds were around me. देखिए, जब मैं थिएटर कर रहा था, इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में, उस टाइम पे हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, मोहन महर्षि जी। I know. तो मोहन महर्षि जी ने जब हमारी एक क्लास ली एक बार और हमको बोला कि लिसन, अपने आंख बंद करो, कान बंद करो, एंड ट्राई टू हियर द साउंड जो सबसे दूर से आ रहा है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है। अगर आप भी करना चाहें तो आप, आई एम श्योर आपने किया होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम एनएसडी, एंड आप समझ पा रही होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि क्लोज योर आइज, एकदम से बिल्कुल शांत बैठो और दूर से, सबसे दूर से आने वाली आवाज़ को सुनो। तो साउंड्स तो इतने सारे हैं हमारे, मैं कहता हूँ इस ब्रह्मांड को जिसने भी रचा है, जो भी हमारे सुप्रीम पावर हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। पहली बात तो मैं एथियस्ट नहीं हूँ, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं आ गई है। आपके घर में भी कोई चीज़, अगर आपके घर में सपोज एक पेन पड़ा है, किसी ने उसको सोचा कि वो बनना चाहिए, उसको बनाया, बनाने के बाद उसको मार्केटिंग का सोचा, दुकान तक पहुंचाया, आप गए, आपको ज़रूरत हुई, आपने वो पेन उठाया, और पेन उठाने के बाद आपने सोचा कि हाँ ये मेरे घर में होना चाहिए, मुझे कनेक्शन है एक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने रच दी हैं। तो प्रकृति में अपने आप में संगीत है। आई लव द साउंड ऑफ वाटरफॉल, आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स, ये जो साउंड आती है ना सुबह सुबह, आप कहीं भी किसी फॉरेस्ट में जाकर बैठ जाओ। हालांकि हम लोग जब हम सिटीज़ में रहते हैं तो इतना हम लोग को मौका मिल नहीं पाता कि हम कहीं पर जाएं और फॉरेस्ट में जाकर ये सुने ऐसे, लेकिन होता है कि हाँ किसी रिजॉर्ट में चले जाओ, कहीं आप हो तो साइलेंस। और हम लोग, सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में ये है कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। अच्छा। मेरे को रात को काम करने का मन होता है, क्रिएट करने का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मिस दीज काइंड ऑफ साउंड्स। बट मुझे पता है जब मैं कर पाता हूँ तो ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे साउंड्स को सुनूं। दैट हेल्प्स मी म्यूजिकली। दैट्स सो वंडरफुल। प्रकृति ने अपनी जगह, और फोक, आप हर जगह का, दुनिया में कहीं पर आप जाइए, आपको लोक संगीत कभी भी लो पिच का नहीं मिलेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि पहले ज़माने में माइक्रोफोन्स नहीं होते थे, नहीं होने की वजह से कोई भी गाना आप ले लो, ओ छल्ला मुड़ के नी आया, छल्ला मुड़ के नी आया, छल्ला मुड़ के नी आया, ऐसा हुआ। ओ रंगो बोती हमारे उड़ीसा का है ना, ये हो गया। या फिर कोई और भी, हे गुजरात में भी होता है, इस तरह का ही गाते हैं, ऊंची आवाज में गाते हैं। फोक कैसे लोगों ने समझा कि हम अपनी आवाज को दूर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। माइक्रोफोन तो बाद में आया, ये तो अब ये जो हमारे यहाँ लगा है हमारी आवाज, अब मैं ऐसे भी बात करूंगा तो आपको सुनाई देगा। क्यों? बिकॉज ये ले पा रहा है, इंस्ट्रूमेंट है जो। तो जब आप थिएटर भी करते हो तो आपको पता है कि थिएटर में माइक्रोफोन्स नहीं लगते, है ना? तो हमें हर चीज एग्जैजरेट करके करनी पड़ती है। महाराज, यहाँ से फलानी जगह से फलाने लोग आए हैं, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं महाराज, बताइए। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। थिएटर में क्यों करते हैं? बिकॉज़ देयर इज नो माइक्रोफोन, हमें करना पड़ता है। तो प्रकृति ने अपने आप ही दिमाग दिया कि आप किस तरह से किन साउंड्स को यूज करो। तो वही जो आप बात कर रहे थे अभी, जिससे आपने सवाल पूछा कि आपको कैसे साउंड्स पसंद है, मुझे फोक म्यूजिक सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिल से आता है, सोल से आता है। ट्रू। सो ये वाला, ये बाकी बर्ड्स और वाटरफॉल तो चलो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन फोक म्यूजिक हम दुनिया भर का सुन सकते हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आप मेक्सिको चले जाओ, आप साउथ अमेरिका चले जाओ, किसी और जगह पे अलास्का चले जाओ, इवन आपने देखा होगा जो मंक्स हैं वहाँ पर उनका एक वो गले से 3 या 4 ऐसे कुछ मंत्र गाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू, नो आई नो दैट आल्सो। तरीका है वो, उसको क्या बोलते हैं, दे साउंड, दे टेक आउट द साउंड ऑफ डिजिटल डू फ्रॉम देयर थ्रोट, काइंड ऑफ, एक ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट है,
तो वो भी एक तरह की सिंगिंग है जिसमें वो एक ही गले में 3-3 आवाजें आती हैं उनकी, तो दैट इज एन आर्ट। एंड लाइक यू आर सेइंग साउंड ऑफ योर वॉइस, करेक्ट। सो ये रिकग्निशन जब आपको घर से मिला, पापा ने प्रोत्साहन दिए, तो आपने सीखना शुरू किया, और हाँ, आपके सीखना- कोई गुरु है? और सीखना पड़ेगा आपको। देखो मेरे ओपी गुप्ता जी मेरे गुरु थे, वहाँ पे प्राचीन कला केंद्र था चंडीगढ़ में, तो वहाँ मैं जाता था म्यूजिक सीखने के लिए। बेसिक वो ली थी ट्रेनिंग, उसके बाद जो अभी हमारे सिंगर हैं बी प्राक, उनके फादर हैं वीरेंद्र ओह। बच्चन, उनसे मैं सीखता था म्यूजिक, और ही पास्ड अवे 2 years बैक, सो गॉड ब्लेस हिज सोल। उनसे सीखा, वो कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उनके पास। तो दिस इज़ व्हाट, बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आपको पता है, आप किसी भी बच्चे को पूछ लो गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो बोलेगा कि गियर ऐसे करते हैं और क्लच दबाते हैं और गियर चेंज करके एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी चलती है। लेकिन सिर्फ समझ जाने से, थ्योरी ही आप गाड़ी नहीं चला लोगे। व्हेन एक्चुअली यू सिट देयर ऑन द सीट, होल्ड द स्टीयरिंग, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ है। सिमिलरली इन म्यूजिक और आर्ट और एक्टिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, हर चीज़ में सेम चीज़ें लागू। तो आपने पहला गाना जो है ना प्रोफेशनली या स्टेज में कब गाया? सबसे पहला अरे सॉन्ग? सबसे पहला गाना तो मैं छोटा बच्चा था, और हाइट तो अभी भी कम है मेरी, ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, कॉम्प्लान नहीं पिलाया था मेरे आधा बढ़ गया मम्मी ना? पापा ने मुझे। हाँ। तो एक बार वंदे मातरम हमारे स्कूल में, मैंने पहले भी बताया है, छोटी सी स्टोरी है कि प्रेयर में सबसे आगे खड़ा होता था असेंबली में। आई वाज इन LKG एंड वन डे माई सीनियर्स वर नॉट देयर, दे वेंट फॉर अ पिकनिक, एंड देन टीचर ने कहा कि आज हम दया करदान विद्या का हमें परमात्मा देना गाने के बाद क्लासेस में चले जाएंगे बच्चों, आज वंदे मातरम नहीं होगा बिकॉज सीनियर्स है नहीं, सीनियर बच्चे सब चले गए, पिकनिक पे गए हैं। तो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे ख्याल से मेरे अंदर का राहु जाग गया। मैं चिल्लाया, मैंने कहा मैडम मैं गाऊंगा वंदे मातरम। बोले इतना छोटा सा बच्चा है, ये वंदे मातरम गाना चाहता है। कोई बात नहीं, थैंक्स टू द टीचर ऑल्सो कि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बुलाया, मुझे खड़ा किया, माइक भी पूरा नीचे करने के बाद भी मेरे से ऊपर था, तो माइक को नीचे किया, बोला आप गाओ। मैंने गाया, पूरे स्कूल ने मेरे साथ वंदे मातरम गाया। दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्सर्ट। वाओ। एंड आई गॉट अ क्रेयॉन कलर बॉक्स। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सर्ट एक्चुअली। करेक्ट, हाँ। सो ब्यूटीफुल। तो क्रेयॉन, तो मेरा स्टेज फ्राइट तो कभी था ही नहीं। आप कितने उम्र के थे उस समय? लोअर केजी में, आप लगा लो। लोअर केजी तो बहुत ही छोटे थे, हाँ। बहुत छोटे थे। हाँ। वाओ, इट्स रियली नाइस। तो क्रेयॉन कलर बॉक्स दिया, पहला अवार्ड था वो मेरा। आगे ग्रैमी जीतूंगा, वो तो जीतेंगे ही आप। तो अभी तो वो तो बचपन में था, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हाँ, फिर धीरे धीरे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। आप सोचिए कि एक लड़का उड़ीसा से बिलोंग करता है, बट पंजाब में पंजाबी फोक गाकर अवार्ड जीतना, हिमाचली फोक गाकर अवार्ड जीतना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिग अचीवमेंट। एंड आपने ऑलरेडी 22 लैंग्वेजेस में गाने गाए। जी। I mean, it is also a huge achievement. जी, you know, I mean, जी। that's really wonderful. जी। So उसके बाद आपने जो पहला गाना, जो क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेज में तो अपने गाए ही होंगे, लेकिन आप पहला गाना जो आपके मूवी में आया, या पहला ब्रेक एज ए सिंगर, इट कैन बी इन उड़ीसा ऑल्सो, इट कैन बी हियर, एनीवेयर, मतलब पहचान बना एक। देखिए, पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर बहुत मुश्किल है फॉर अ सिंगर टू पेनिट्रेट इनटू द इंडस्ट्री, और बहुत मुश्किल है। तो मैंने डबिंग करना शुरू किया, और डबिंग इंडस्ट्री में लीला घोष वाज अ पायनियर, एंड उनके साथ काम करना शुरू किया एनिमेशन में, और इसमें उसमें बहुत सारी डबिंग्स करी। उसी दौरान फिर मुझे मौका मिला कि मैं संजय दत्त सर को मिलूं, उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने काम दिया, इंडस्ट्री में गाना शुरू हुआ। बट उससे कई साल पहले की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे उड़ीसा में मेरा एक एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ था, तमो कथा मने पड़े, तुम्हार कथा मने पड़े इन बंगाली, तमो कथा मने पड़े। उसमें बाबुल दा का एक गाना हिट हुआ था, बाबुल सुप्रियो का, बाटोरे चालू चालू, और मेरा एक गाना पॉपुलर हुआ था। 2 गाने पॉपुलर हुए थे, निझुम रातिर सहर रे, आजी मंगन काली तोर बाहागर, 2 गाने हिट हुए थे। सो दोज वर माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स। फिर धीरे धीरे मैंने उड़िया सिनेमा में गाना शुरू किया, उसके बाद जाके मुझे बॉलीवुड का ब्रेक तो मिला। तुम्हार कथा मने पड़े, एनी लाइंस यू रिमेंबर नाउ? हे निझुम रातिर सहर रे, हृदयर शून्य पथरे, स्मृति मोरो आजी नुआ बहु साजी, नई नई आसे जन्ह पालिंकी रे। ये बहुत ही बेहतरीन कविता है, जो लिखी थी श्रीकांत गौतम जी ने, उन्हीं का ही म्यूजिक था। तो उन्होंने ही कंपोज किया था, और सरोज नंदा करके हमारे कंपोजर हुआ करते हैं, उन्होंने इसकी ट्यून बनाई थी। बहुत ही बेहतरीन पोइट्री था। उस जमाने में पोइट्री के ऊपर गाने बहुत बनते थे। आजकल तो सब आप लिखे जाते हैं जी, बहुत तरह से। जी। तो उसके बाद आप सीधे मुंबई आए कि
नहीं, मैं कैसे ये मुंबई था? में रहते हुए ही मैंने उड़िया गानों की उड़िया रिकॉर्डिंग्स गानों की थी, की। बिकॉज वो लोग वहां से प्रोजेक्ट लेके आते थे, यहाँ रिकॉर्ड करके जाते थे। तो पहला गाना आपको संजय दत्त के फिल्मों में मिला था ऐसा? हाँ, हिंदी के हिसाब से हिंदी अगर आप के। देखेंगे तो संजू सर इज माय गॉडफादर, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। मेरी पहली फिल्म थी मुसाफिर, जिसमें गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, और उसका एक टेक्नो हाँ। वर्जन मैंने गाया था। ऋचा जी ने गाया था एक फीमेल वर्जन, और एक वर्जन सुखविंदर जी ने गाया था। तो हम्म। 3 अलग-अलग Three सिचुएशन अलग में थे वो singers, गाने yeah. फिल्म में। हम्म। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद एक गाना आया इश्क खुदाई रब ने बनाई, हम्म। फिल्म रुद्राक्ष का। देन केम दीवार, दीवार जो अभी वाली दीवार है मिलन लूथरिया की, जिसमें अमित जी के लिए गाना था मेरा दम अलेरी करके कवाली थी। देन रक्त एक फिल्म थी जिसमें गाया था सच है ये कि तुम मेरा प्यार हो, वो वाला गाना। तो आई मीन आई हैव रेड दिस कि तीजा का जो गाना बना था वो बहुत कम समय में बना था। आई मीन आई थिंक विद इन 7 days ऑफ रिलीज, बिकॉज इट वाज नॉट देयर, एंड बहुत जल्दबाजी में बना था वो गाना। तो आपको तो मतलब कितना टाइम लगता है जब अब एक गाना तैयार होता है, सिंगर के पास आता है, उनको क्या स्पॉट में ही रिहर्सल कराया जाता है और तुरंत हो जाता है, और इट गिव्स टाइम? कैसा होता है और ये कैसे जल्दी से हुआ था? नहीं, कैसा आपको एक्चुअली feel हुआ हुआ क्या था? था कि इफ यू listen to the interviews of Salim Suleiman, I've heard that. they always mention कि this song was made in a different tune for a film called Door. या वहां से उन्होंने हाँ, वहाँ से वो ट्यून उन्होंने बनाई थी, तो वो ट्यून somehow नागेश कुकनूर को नहीं पसंद आई, तो फिर उन्होंने रह गया था, और वो हाँ, जब यश जी देखने को गए सुनाया। थे उनका तो Correct. उसमें उनको तो लगा यश जी ऐसा। को सुनाया, तो यश जी ने बोला कि इसमें डिफरेंट लिरिक्स लिखे, इस फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से बनाइए। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका कोई और बनाया हुआ गाना किसी और डेस्टिनी में हो, तो उसकी डेस्टिनी अलग होती है, तो ऐसा ही एक डेस्टिनी था उसमें, तो उस वजह से, और फिर वो गाना मैंने गाया तो गाना हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री एंड बट ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स एक्चुअली इन लाइफ। सलीम सुलेमान का बहुत अच्छा डिसीजन था मुझे लेने का इस गाने में, बिकॉज ये गाने का जस्टिस जो है वो मैं ही कर सकता था। बहुत अच्छा। और उसको अपने एक दिन में 1 day रिकॉर्डिंग में हो गया था, और हाउ इट हैपेंस? 2 स्टेप्स में हुआ था। इनफैक्ट सलीम कॉल्ड मी पहले दिन, उन्होंने बोला कि ये गाना राहत गाने वाले थे, लेकिन वी सजेस्टेड कि आप गाओ, बिकॉज ये इंडिया के फ्लैग के ऊपर गाना है, तो वी कैन नॉट टेक सम अदर कंट्री का सिंगर टू सिंग। तो देन दे ट्राइड माई वॉइस एंड दे, तो आदित्य चोपड़ा जी ने सुना, उनको पसंद आया। उसके बाद अगले दिन हमने दूसरा वाला अंतरा किया, एंड दैट इज हाउ द सॉन्ग हैपेंड। या आई थिंक आप अगर दोनों दिन का भी सेशन मिला के लो तो करीबन 2 घंटे में गाना हो गया। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी इसमें कि पहले आपको सिचुएशन दिखा देते हैं, सीन दिखा देते हैं कि शाहरुख खान हैं, रो रहे हैं, कबीर खान का वो कैरेक्टर है, वो इंडिया की फ्लैग की तरफ देख रहा है। वो इमोशन तो हम लोगों में भी होता है, जब हम भी इंडिया का फ्लैग बाहर कहीं किसी और कंट्री में लहराते हुए देखते हैं अपने तिरंगे को, तो हमारे मन में भी वो फीलिंग आती है, देशभक्ति वाली जोश आता है। तो वो मुझे भी आया, मुझे भी फील हुआ। दिस सॉन्ग वाज मेंट फॉर यू एंड यू डिड इट। एंड एक्चुअली इस बारे में मैं बात करना ही चाह रही थी कि कैरेक्टराइजेशन के बारे में, लाइक यू सेड ना कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू सेड, यू नो, फॉर अ सिंगर लाइक टुडेज generation, you know what is happening and how people are singing. So to feel the actual feeling which the story is feeling, and a singer coming there and also feeling the same, obviously that has to be magic. प्लेबैक सिंगिंग इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले आपको वो पर्दे पर जो कैरेक्टर, जो किरदार है, जो सिचुएशन है, उसको आपको इमोट करना है। इट इज नॉट ईजी, you know, it is very easy to sing some foot tapping number, you know, वो तो हर एक्टर पे भी चल जाता है, हर उस पे भी चल जाता है। लेकिन when it comes to इमोशनल गाने, तब आप इमोट कर सकते हैं। तो प्लेबैक सिंगर के लिए हंसी का गाना अगर है तो आपको हंस के गाना पड़ेगा, you know। आप किशोर दा इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर्स। इफ समबडी वांट्स टू बी अ सिंगर, किशोर कुमार जी के गाने आप शुरू से लेके एंड तक सुन लीजिए। All kinds of songs. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो। ये कॉम्पोजिशन देखिए, ये गाना देखिए, इसका सीक्वेंस देखिए। मेरे भी अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं अगर हम सुनेंगे इन गानों को, तो भैया वहाँ से म्यूजिक आज कहाँ तक पहुँचा है। तो दैट थिंग, वो जो लेजेंड्स काम करते थे उस ज़माने में, क्यों करते थे, वो गाने क्यों वर्क करते थे। आपको अगर म्यूज़िक सीखना है, आप या तो किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, और अच्छे गुरु नहीं हैं तो आप किशोर कुमार जी को सुनिए, रफ़ी साहब को सुनिए, आपको समझ आ जाएगा संगीत क्या होता है और किस तरह से गानों में आप इमोशन ला सकते हैं। आपने एक बात और भी, एक बार हम मिले थे तो बात हुई थी इसको लेके कि बड़े सिंगर्स जो होते हैं अलग अलग प्लेबैक के बारे में, जब वो अलग अलग हीरो के लिए गाते हैं, हीरोइन के लिए गाते हैं, उसमें उनकी गायकी बदल जाती है। बिल्कुल, किशन को आपने बोला था, क्या उनको आप दोहरा सकते हैं? आपने मुझे ये बताया था कि हाँ, देखिए अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक गाना लीजिए, आप अभी अरे यहाँ वहाँ सारे
आप देखो, आप राजेश उसको स्टाइल देखिए, जहां में तेरा राज है, ये आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऐसे घूमेगा, हाँ। आपको लगेगा किशोरदा गा रहे हैं तो राजेश खन्ना का सोच के गा बहुत रहे हैं। था, हाँ। और मंजिले अपनी जगह है, रास्ते और भैया ये कुत्ता अमित जी आ गए एकदम से, अखई के पान बनारस वाला, अलग आ गया एकदम, कैरेक्टर अलग चेंज हो गया। तो यही तो आर्ट है I think प्लेबैक that का। character तुमको लगता है changing, किसी of और का course. बनाया हुआ गाना गाते हैं? भाई अगर वो जो गाना बना रहे हैं अगर वो गा सकते थे तो हमको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। एक गाना था आनंद बख्शी जी ने लिखा था, एंड वो था मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी यू नो कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है एक लड़की की लाइफ में, औरत की लाइफ में। और उसके ऊपर आप किसी को भी आप चैलेंज कर दो कि भैया एक गाना लिख के दिखा दो, आप बिना वल्गैरिटी के ब्यूटीफुली, हाउ कैन यू राइट दैट थिंग? Because a lover and both the lovers they want to meet but they cannot because of the thing. तो आनंद बख्शी जी ने लिखा, पास नहीं आना दूर चले जाना कि तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। यू नो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली दे यूज्ड टू थिंक। वो जमाना और था, अब तो सब कुछ डबल मीनिंग में आ गया। गाली वाली गानों में गालियां दे रहे हैं, उसको ई कर सिर्फ एक ई डाल देते हैं उस गाने के आगे, है ना, तो यही हो जाता है। एक्चुअली जो रस है उस गाने में, करेक्ट, उन्होंने उसको उस तरह से डिफाइन किया, वेरी ब्यूटीफुली, वेरी रिस्पेक्टफुली, बिकॉज़ इट इज लाइफ। बिल्कुल, इट्स अ लाइफ एंड इट हैपेंस। आजकल तो चैट जीपीटी भी लिख देता है गाना। लोग हैं जो आते हैं, बोलते हैं, अपना आराम से बोल देते हैं कि आइए गाना लिख देते हैं, हम लोग चैट जीपीटी से लिखवा के म्यूजिक बना देते हैं। लेकिन नहीं, वो इमोशन कहाँ से लाओगे, वो शब्दों का चयन कहाँ से लाओगे? पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौटाई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। कहाँ से लाओगे? इजाजत चैट जीपीटी भी नहीं सोच सकता है इसको। आज से 100 साल के बाद भी अगर एआई बाप बन जाएगा ना किसी का, तो भी नहीं सोच सकता ऐसी चीजें। वो तो नहीं हो, है ना। एआई के पास इमोशन नहीं है ना, वो हमारे इमोशन को लेके चीजें बनाता है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, आपकी वॉइस बहुत अलग है जी। आप अगर कहीं और होते, हॉलीवुड में होते, तो पता नहीं किस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं। व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बट जब आप एक इसमें आते हैं, जैसे बॉलीवुड में गाना है या हमारे देश में जिस तरह के गाने एक पसंद किया जाता है एक टाइम के बाद, यू नो, किशोर कुमार ऑफ कोर्स, रफी साहब ऑफ कोर्स, है ना, तो बट ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी यूनिक, हाँ, वेरी वेरी यूनिक। पर आपको कभी लगा, that is why they are called legends ना? एब्सोल्युटली। लेकिन आपको कभी लगा ऐसा एक इनसिक्योरिटी की मेरी आवाज इस ये जो बॉलीवुड की अपनी या जो आम लोग सुनना चाहते नहीं है, तो कभी आपको ये फियर आया कि मेरी आवाज ऐसी है जो शायद सब लोग समझ ना पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि यार मुझे भगवान ने एक स्पेशल काइंड ऑफ सिंगिंग दी है, So you believed it स्पेशल from the एबिलिटी दी beginning? है। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली From the beginning? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ही ये कर सकता हूँ और कुछ चुनिंदा गायक और हैं हिंदुस्तान में जो कर सकते हैं, सब लोग ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन गाना तो सब गा सकते हैं, लेकिन इस तरह के गाने गाने के लिए स्पेशली भगवान ने अगर मुझे चुना है, तो आई बिलीव कि मुझे इसमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि बहुत काम करूँ, बट कभी भी मैं ये गोल लेकर नहीं आया था इंडस्ट्री में कि मुझे 5,000 गाने गाने हैं, 10,000 गाने गाने। मिल गए तो जैकपॉट लग जाएगा, मेरा मालिक की कृपा हो तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एक गोल रहता है कि 12 महीने में 12 गाने गाऊँ, उसमें से अगर 6 भी अच्छे हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं और ट्रेंडिंग पे जाते हैं, तो माई जॉब एज अ सिंगर इज डन। सो आई डोंट मैं तो अपने को बहुत ही यू नो स्पेशल समझता हूँ कि भगवान ने ऐसा ब्लेस किया है कि इस तरह की आवाज़ दी है। तो मैंने नुसरत साहब को बहुत सुना है, उनको बहुत फॉलो किया है, उनके कव्वालियाँ सुनी हैं, और वो सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने समझा है कि म्यूज़िक तो ये गायकी जो है, इस तरह की सिंगिंग जो है, इस तरह का टेक्सचर मिलना, वो मालिक की कृपा से हुआ है। तो है, तो मैं क्रेडिट सारा उस ऊपर वाले को देता हूँ। So, आप किस तरह से रेगुलर इसको पॉलिश करते हैं? आई मीन व्हाट इज योर एवरीडे रूटीन? और अभी भी, बिकॉज आप ऑलरेडी एक जगह पहुंच चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं आप, है ना, तो किस तरह से, बिकॉज इसको बचा के रखना तो एक बात है, और इसको और ऊपर तक और निखारने के लिए आप कैसे काम करते हैं? आप अगर मुझसे पूछेंगे, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैं कभी भी अपने घर में रियाज नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की मेरी गायकी है, दिल कमड़ा डूब डूब जावे, अब ऐसा आप अपने अपार्टमेंट में बैठ के नहीं गा सकते हो। सुबह 5 बजे भी नहीं गा सकते हो कि शाम को 7 बजे भी नहीं गा सकते हो। लोग बोले या तो ये पागल हो गया है, या तो कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि अच्छा गाते हैं,
तो मेरा जो है मोस्ट ऑफ द रियाज हैपेंस इन माय कार व्हेन आई एम अलोन ड्राइविंग, नोबडी इज देयर विद While driving? व्हाइल ड्राइविंग। क्योंकि हमारा 1.5 घंटा तो हमारे इस देश में आपको पता है ना, आधी जिंदगी हमारी ट्रैफिक में निकल वो जाती तो है, है। तो उसी में रियाज कर लो, यूटिलाइज कर लो। तो आप घर में कभी रियाज नहीं करते? रियाज इज व्हाट बेसिकली, रियाज इज प्रैक्टिस, यू नो, गर्म करना होता है आपके गले को, वो चलता रहे, उसकी सर्विसिंग होती रहे गले की, वही तो है, वो करते रहो अपना आराम से, अपना सही रहेगा। तो आप कभी भी कहीं भी, लोग जैसे कहते हैं ना, कहीं एक जगह बैठ के, हाँ, ऐसा तानपुरा कभी लेके मैं अब कभी नहीं किया? नहीं, अब कभी नहीं मैं कर किया? नहीं पाया कभी ऐसा, मेरे से नहीं होता। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत चंचल स्वभाव का इंसान हूँ, वो तो लगता ही है है। ना। तो मेरे आई एम अ नंबर 4 born on a 13th. Anybody who's a numerologist if watching this show would understand कि मेरे पे राहु बहुत हावी है, और मंगल मेरे कुंडली में पराक्रम भाव में बैठा है। तो आई एम अ वेरी वेरी इम्पेशेंट पर्सन, आई एम अ वेरी वेरी चंचल स्वभाव का आदमी। तो मेरे से एक जगह टिक के बैठा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता। अभी ये करने लगा हूँ तो कुछ और कर लूँगा, ये करने जा रहा हूँ तो कुछ और कर लूँगा, ये वाला सीन रहता है मेरा। तो बैठ के एक जगह रियाज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आई वुड लव टू डू इट। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग मत करिए। बच्चों, अगर आप सुन रहे हो, नए न्यू कमर्स, रियाज ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए। आपका जो भी आर्ट है, गिटार सीख रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप देना चाहें अपनी लाइफ में ज़रूर दीजिए संगीत को। मैं कार में रियाज़ करता हूँ, मैंने बताया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रियाज़ नहीं करता है, कुछ नहीं करता हूँ, बट थोड़ा चंचल हूँ मैं, क्या करूँ अभी, मेरा अच्छा है चंचल रहना। जब बहुत क्रिएटिव होते हैं कोई, मैंने जी। ये सुना था जी, कि उनके अंदर एक हर वक्त एक खलबली होती है, ऊत खोपड़ी होते हैं, बहुत ज्यादा, थोड़े भूत जैसे होते हैं, लेकिन but- भूत नहीं, ऊत क्या ऊत ऊत- खोपड़ी, क्या ऊत- ऊत मतलब हरियाणा में ऊत बोलते हैं, ऊत मतलब जो खोपड़ी। पागल, ऊत खोपड़ी। आप पागल, हाँ। दीवाना, जिसको दीवाना कहते हैं। एक्सेंट्रिक, भूत खोपड़ी, ऊत खोपड़ी। Sorry। तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए इंसान को। तो वही मैं अभी पूछने जा रही थी कि आप क्या सोचते हैं कि टैलेंट अलोन इज एनफ, और डज टाइमिंग, लक एंड परसिवियरेंस आल्सो क्रिएट दैट काइंड ऑफ पार्ट, दैट काइंड ऑफ जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, बिलीव मी। मेहनत मैं बहुत करता हूँ, बहुत लोगों को मिला, बहुत काम किया, सब कुछ किया, नसीब के हिसाब से मुझे मिला है जितना मेरे नसीब में है, और जितना मेरे नसीब में आगे भी है वो भी मुझे मिलेगा, और जो मेरे नसीब में है मुझे नहीं कभी मिलेगा। तो मैं कभी इनसिक्योर नहीं होता, किसी का नाम नहीं काटता, किसी का नाम लेने से घबराता नहीं। कभी मेरे पास कोई गाना आता है तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर को बोल देता हूँ, क्लियरली भाई ये मेरे जॉनरा का गाना नहीं है, आप इनसे गवाओ, इस सिंगर से गवाओ। एक ज़माना था जब मैं नया नया स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम थोड़ी चीज़ें हुई, गाने रीडअप हो गए मेरे, बहुत सारा कुछ हुआ, बट देन आई थॉट कि नहीं यार, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री है, और ये होता रहेगा, होता आया है, होता रहेगा, हो रहा है और होता रहेगा, यू नो। इस बारे में हाँ। मेरी थोड़ी सी डिफरेंट कहीं से और विचार सुना है मैंने। ये कहते हैं कि हम समझते नहीं, बट हम कॉजेज क्रिएट करते हैं हमारी खुद की डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए भी। नहीं, तो ऐसा आप कुछ जो नहीं। इतना कुछ करते हैं, ये कॉजेज नहीं है आपके लिए? आपको मेरी आवाज़ कैसी लगती है? बहुत अच्छा, आई मीन ये इतना अंदर It तक touches the soul, right? कहाँ जाता है? Then where am I can't- gone wrong? What have I done wrong to the industry? Nothing that you I'm have not done getting more and more songs. वो अलग बात है, हम्म। लेकिन वही बात आपने जो शुरू में बोला है, कोई होता है 50 गाना गाता है हम्म, और इसका 1 या 2 गाना याद रहता है, हम्म। और आप अगर 10 गाना गाते हैं, 10 गाना याद रहता नहीं, है। वो ठीक है। जब डेस्टिनी या कर्मा तब हावी होता है हम्म, जब एक बंदा उसको मान लेता है और बैठ जाता है। हम्म। बट अगर आपने रॉबिन्सन क्रूसो का सुना है ना, जी, जी। कि जैसे बैठ के माकड़े को देख रहे थे, हाँ, हाँ, बार बार फिसल रहे थे, बार बार फिसल रहे थे, और वो जो है वो खुद राजा जो है हार के आया था, जी, जी, जी। और वो देख रहा था गुफा में बैठ के कि ऐसी हालत है, हम्म। बट उसे देखा वो माकड़ा बेटा छोड़ा नहीं, वो जाल बना के छोड़ा, हम्म। तो वहां से वो निकला और वो अपने फिर फतेह किए चल। मैं आपकी बात तो मान रहा हूँ। मुझे लगता है आपका भी वैसे ही है। मैं कहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कुछ नहीं करते, बैठे बैठे उनकी लॉटरी लग वो जाती तो है। किस्मत है, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन किस्मत जो है, किस्मत खाली आपकी किस्मत जगह में तक होगा तो आप पहुंचेगा। उठकर जाओगे, काम भी करोगे, हाँ। आपको कोई इंस्पायर करने वाला बंदा मिल जाएगा, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग तो आ आपके जाएंगे। साथ भी तो ये हुआ है, क्या? आपके फादर ने आपको सबसे पहले किया आगे है। बढ़ा दिया हाँ, मैं ना। वही कह रहा हूँ ना कि मैं उसी वजह से तो हूँ आपको यहाँ पर। चक दे का वो गाना मिला जो आई थिंक कोई नहीं गा सकता है, करेक्ट। तो और वो शाहरुख खान के साथ भी नाम जुड़ा हुआ है बिल्कुल उस फिल्म के साथ। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, टैलेंट आपको भगवान की तरफ से मिला है, लेकिन आपके मेहनत के साथ में, आपके डेडिकेशन के साथ में, आपके बिलीफ के साथ में लक फैक्टर होना बहुत जरूरी वो है। जरूरी है। क्या कृष्णा को अभी भी कॉल कर करके काम मांगने की जरूरत है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। काम मांगने में कैसी शर्म है? आप करते हैं? नए नए जो लोग आते हैं उनके साथ भी मैं काम करना चाहता हूँ। नए कंपोजर्स आते हैं, इतने बिल्कुल, टैलेंटेड है, इतने बिल्कुल। प्यारे बच्चे आ रहे हैं आजकल, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जेनजी में भी कितने अच्छे अच्छे कंपोजर्स आए हैं बच्चे।
मैं काम करना चाहता हूँ उनके वो साथ। तो पागल हो जाएंगे आप अगर उसके साथ चाहेंगे करने नहीं, के लिए। समटाइम्स आई कॉल देम, भाई आपका काम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वुड लव टू वर्क विद यू। हम्म, और कोई भी, आप कितने भी बड़े बन जाओ, काम मांगना कोई बुरी बात नहीं ना है, ना। और शर्म नहीं होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको शर्म छोड़ना पड़ेगा। मैंने कुछ गलतियां स्टार्टिंग ऑफ माय करियर की हैं, जिसके वजह से मैं रिपेंट करता हूं। मैं आने वाले कमिंग जनरेशन में जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, बेटा कभी भी शाई नहीं होना है आपको। मीडिया हो, कोई भी हो, आप बढ़ चढ़ के अपना जाओ। लर्न फ्रॉम नेहा कक्कड़ एंड सोनू कक्कड़ एंड टोनी कक्कड़। हाउ, मतलब आपको खुद अपने आप को दिखाना है कि आई एम हियर, लुक एट मी। मैं कैमरे के आगे खुद चला जाऊं, मैं लोगों से बात कर लूं, मैं उनको समझाऊं कि भाई मैं भी हूं, आई एग्जिस्ट। आपको बताना पड़ेगा, तभी लोग आपको पहचानेंगे। अगर आप शायर रहोगे, नहीं यार मीडिया से कैसे बोलूँ ना, संकोच करोगे, नहीं जा पाओगे, नहीं यार क्या सोचेंगे, अगर इनको जाके हेलो बोल दूंगा तो पता नहीं गुस्सा ना कर दे, डांट ना दे। होता है वो एक अंदर होता आता है वो, हाँ, रिस्पेक्ट होना जरूरी है, पर संकोच नहीं होना हो चाहिए। जाता है। मैंने ये गलतियां करी हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं जिस वक्त पे मुझे संजय दत्त सर ने ब्रेक दिया, इतने गाने मैंने बड़े बड़े गाए, उस टाइम में मीडिया से शर्माता था। और मीडिया आपको ब्रश ऑफ कर देती है। मीडिया इज द मोस्ट रूथलेस पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज जब तक आप स्टार नहीं हो तब तक दे डोंट कम टू यू। I have seen that. I was with John Abraham. I was with Sanjay Dutt. I was with Bipasha Basu. I was with Mahesh Manjrekar. I was with Sunil Shetty, standing amongst the group. They never asked me a single question. Because for them, I'm not relevant. तो अपने को relevant बनाना पड़ेगा। आपके गाने के बारे में जहाँ भी कोई बात लोग करते हैं वो कहते हैं कृष्णा हैज गिवन टाइमलेस सॉन्ग्स। जी, टाइमलेस सॉन्ग है ना। जी। सो आप टाइमलेस को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले तो उन सभी कंपोजर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन सभी लिरिसिस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने बेहतरीन गाने लिखे, इतने बेहतरीन गाने स्कोर किए गए, बनाए गए, कंपोज किए गए, जिनको मैंने गाया। तो ये सिर्फ अकेले मेरा योगदान नहीं है, ये उन लोगों का भी योगदान है। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे इतने बेहतरीन गाने मिले गाने को अपने करियर में अभी तक। व्हाई इट इज टाइमलेस? टाइमलेस तो ये लोगों का प्यार है कि वो बोलते हैं ऐसा। तो मैं अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मैं अपने गानों का अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, बट मैं सबका, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी गाने मैंने गाए हैं सारे गाने हिट हैं, और जिन जिन कंपोजर्स ने वो बनाया है उनका शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने मेरा नाम लिया बंद कमरों में, जहाँ मैं नहीं था, जहाँ मेरा जिक्र हुआ, जहाँ मेरा नाम लिया गया और मुझे बुलाया गया वो गाना गाने के लिए, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह का गाना आप गाए हैं वो हमेशा जिंदा रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज टाइमलेस। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो गाने जो गाए और किसी एक समय और किसी एक जॉनर के लिए नहीं है। आई वुड थैंक गॉड एंड द यूनिवर्स आल्सो फॉर चूजिंग मी फॉर सर्टेन एंड सॉन्ग्स। गिविंग यू दैट। आप मुझे ये बात बताइए कि एक ऐसा चीज मैं पूछी हूँ, डिस्क्राइब अ टेक। आपने गाना गाया, when your voice did something your mind didn't plan, मतलब you just did it. ऐसा कोई सरप्राइज और ऐसा कोई मोमेंट होता है ना जो खुद ही मूव हो जा रही, ये मैंने क्या कर दिया? आपको मैं ऐसा कुछ? अभी गुजरात में एक फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी है, लालो, बेहतरीन मूवी है। और आपको पता है कि पीपल लव श्री कृष्ण भगवान, यस, और माधव जिनको हम कहते हैं, या फिर मोहन कहते हैं। फिर अंकित सखिया मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने फिल्म बनाई है, वो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और इसका संगीत किया स्मिथ जे करके, जो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज़ एन इंडियन गुजराती बट लिव्स इन मेलबर्न। तो उन्होंने संगीत किया इस फिल्म का। आपको मैं बताता हूँ, कुछ ईमानदार लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई। पहले 2 हफ्तों में पता ही नहीं था, उनको लगा डबा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था उस फिल्म को। इतनी बेहतरीन कहानी, फिर वर्ड टू माउथ फैलने लगा। कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छी फिल्म है, जाओ देखो। 3rd वीक से अप्रॉक्सीमेटली, एक मैं फिगर बोल रहा हूँ, 1 करोड़ में बनाई हुई फिल्म 4 हफ्ते के अंदर 15 करोड़ कमा ली। ऑसम। एंड पीपल आर लविंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। और जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, जो लड़का है, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसकी स्टोरी बताई है, उस बंदे ने इतना अच्छा काम किया है। सभी कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में, लेकिन उनका जो काम है देखने लायक है फिल्म। और ये अभी हिंदी में भी डब हो रही है, हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी गुजराती में ही जा रहे थे? गुजराती में ही जा रहे हैं। अब हिंदी में डब होगा। सो लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब जगह पे जहाँ जहाँ हमारे गुजराती भाई बहन रहते हैं, उन लोगों में सब में फिल्म बहुत पॉपुलर हुई है। नॉन गुजरातियों ने भी इस फिल्म को देखा है, उसको सराहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल फिल्म। और ये स्पिरिचुअल जो आजकल है लोगों के बीच में, एक बहुत अच्छी बात है कि कलयुग, जो इस वक्त कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में भी लोग इतना ज़्यादा भक्ति पर फोकस कर रहे हैं आज।
तो वो एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडियंस में कि उन्होंने भक्ति को भी एक पार्ट रखा हुआ अपनी ज़िंदगी में, इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी। तो ये फिल्म वो चीज़ को दिखाती है। कृष्ण सदा सहायते, सहाय है हमेशा, तो आपके साथ हमेशा सहायता। कृष्ण है। कृष्ण बोलो आप, कोई भी बुद्ध भगवान बोलो आप, अल्लाह बोलो आप, वाहिगुरु बोलो, कोई भी बोलो, जिनको भी आप बिलीफ से गुड मानते हो, स्पिरिट जो होते हैं, जिनको आप भगवान मानते हो, वो आपके साथ आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। खड़े तो ये फिल्म उसी चीज़ को बताती है। उस फिल्म को जाकर आप थिएटर्स में ज़रूर देखिए, मैं कहूँगा, और यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और कोई भी इंसान, एक इंसान ये चीज़ बोलता है कि मुझे लालो देख के मज़ा नहीं आया, भाई आपके टिकट के पैसे मैं लौटा दूंगा, मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम इनबॉक्स में, और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, आप खुद जाओगे और 2 बार बोलोगे कि मुझे दोबारा देखनी है फिल्म। तो आपने इतना बोल दिया तो अभी हम सबको एक साथ जाना पड़ेगा बिल्कुल वो देखने के लिए। थिएटर्स में लगी seriously। हुई है, जाकर देखिए लालो फिल्म। तो उसमें आपने जो गाना गाया वो आप गा सकते हैं थोड़े से? हो मनमोहन हे माधव तू, जीव तर तारू मारी नैया नो आत्म खलासी तू कान्हा, मनमोहन हे माधव तू, जीव तर तारू। Brilliant, brilliant, brilliant. So कोई एक ऐसा गाना, I don't know whether it is this one or another one, कि आप गए रिकॉर्डिंग में, पता ही है क्या गाना है, लेकिन आपने जब गाया आप खुद ही सरप्राइज हो गए कि मैंने ऐसे गाया। मैं इसी गाने का जिक्र करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ क्या हो गया, जितने भी कृष्ण सदा सहायता, जैसे कि जो टैगलाइन है इस फिल्म का लालो का, और ये है कि हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे ही बातों में क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है रौनक कोराट, जो बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं, बहुत अच्छी चीज़ें शूट करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर भी हैं, और वेडिंग वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, मतलब जो प्री वेडिंग वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। तो इसे ब्रिलियंट गाय, बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि बॉलीवुड में एक अच्छा सिंगर है, उनको लो। क्योंकि देखिए दूर दूर तक एक उड़िया आदमी गुजराती गाएगा, किसी को पता ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं क्या पॉसिबिलिटी है। बट उनको लगा कि यार कृष्णा भाई आपको गाना चाहिए गाना। तो मैंने कहा ठीक है अंकित भाई से बात करा दो। हम लोगों ने बात की, 6 महीना तो हमारे डिस्कशन में ही गया कि कैसे क्या करना, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग दिस फिल्म। तो उन्होंने बोला कि यार कृष्णा भाई आप ये गाना करेंगे, आप गाएंगे। स्मिथ इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन द ट्यून इन ऑस्ट्रेलिया, एंड हम लोग सब मिलेंगे और करेंगे इस गाने को। तो मेरे माइंड में सबसे पहली बात पता क्या आई, तुम उस आदमी को चुन के लाए हो जो जन्माष्टमी में पैदा हुआ है, उसका नाम ही कृष्णा है। कृष्णा सिंगिंग फॉर कृष्णा, एंड इट इज़ द विल ऑफ कृष्णा कि मैं ये गाना गाऊँ। और ये गाना हिस्ट्री हो गया। मैंने उनको बोला था ये गाना हिट हो जाएगा, इतना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बना है सब कुछ। जब हम स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, हमारे को लगा कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन पावर हमको इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे क्योंकि जो चीज़ें मैंने उन लोगों को बोला है, कहते हैं ना आप जुबान पे सरस्वती बैठी होती है, बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज़ें हैपन हो रही हैं। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉन्ग टू दिस फिल्म टू बिकम सच अ बिग हिट। इट्स अ हिट, अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने, सोचा था हिट होगा। हर कोई जब भी कोई फिल्म क्रिएट करते हैं तो वो चाहते ही हैं कि लोग पसंद करें, देखें उस फिल्म को। लेकिन एक वंडर्स करेगा, इतने वंडर्स करेगा फिल्म तो कभी सोचा नहीं था, और वो भी रीजनल लैंग्वेज होने के बावजूद भी। और तो मैंने वो इंटरव्यू मैंने फिर अंकित को भेजा। मैंने कहा अंकित सी दिस इज़ व्हाट आई हैव सेड। और उस दिन मैं ये फील कर रहा था कि कोई ना कोई डिवाइन पावर हमारे को ब्लेस कर रही थी, हम सभी को। इस फिल्म से जुड़े जितने भी कास्ट है, क्रू है, और इवन जिस बच्चे ने चाय भी पिलाई है सब एक्टर्स को, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी वजह से, उन सब के आशीर्वाद से, उन सब के प्रेम से, और कृष्ण भगवान का ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को हुआ कि ये फिल्म वंडर कर रही है। फिल्म आने वाले टाइम में आई थिंक अनदर 2-3 मंथ्स भी ये फिल्म का फीवर जाएगा नहीं, और इट इज़ गोइंग टू विन ऑल दी अवार्ड्स नेक्स्ट ईयर। ये भी मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। कहते हैं ना कि गुजराती फिल्म हिस्ट्री में इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म। और अच्छा। अभी 2-3 दिन पहले सुभाष घई जी भी इस फिल्म के बारे में जिक्र कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे इस फिल्म की। तो वही है जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, करेक्ट, या स्पिरिचुअलिटी में, करेक्ट। उनका रास्ता तो वही ढूंढ के निकालेगा। मैं कहता हूँ आप ईमानदारी से, अगर आपका नीयत अच्छा है, आपकी नीयत सही नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत सक्सेस तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके कर्मा पिछले जन्म के बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ स्टार बन जाओगे। लेकिन नीयत गंदी रखोगे तो आज नहीं तो कल आपको जवाब मिलेगा। लेकिन नीयत साफ रखोगे तो जब आप नीचे गिरते भी हो ना, तो माधव आके आप खुद आपको हाथ ऐसे करके उठा लेंगे। आई बिलीव इन वन थिंग, गॉड विल नेवर कम स्ट्रेट टू हेल्प एनीबडी, इट विल मेक सोर्सेस। एब्सोल्युटली। आप जब भी गाना शुरू करते हैं ना,
जिस भी रेंज से आप अगर सा में शुरू करें या सप्तम में करें, हम्म। वहाँ एक फ्रीडम महसूस होता है आवाज में। आपकी वो कनेक्ट है सरस्वती के साथ। जब आपको संगीत मिलता है ना, वो ब्लेसिंग से ही मिला Blessing होता है आपके अंदर। हाँ ठीक है, ये सिर्फ पॉलिश करने वाली हाँ। बात है कि यार देखो, आप कोयला, सी व्हाट इज डायमंड, क्या है? कार्बन ही है ना? कोयला, हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन वो जब उसको घिसते हैं घिसते तब जाके। हैं और उसमें शाइन लाते हैं, वो कारीगर के हाथ में वो कारीगर मिलता है आपको। ऐसे लोग मुझे इंडस्ट्री में मिले जिन्होंने मुझे परखा, जैसे संजय दत्त सर थे, उन्होंने मुझे परखा कि यार ये लड़का कुछ करेगा, से कोई इसको तो लेके था, जाओ, लोगों कोई से तो था। मिलवाए, कोई तो मेरा जौहरी है। मालिक ने संजय दत्त जी के दिमाग में ये डाला कि इस लड़के को काम दो। He became the media, he became the medium, and he took me to others and said कि यार इस लड़के को सुनो। तो तराशने के लिए भी आपको जौहरी के पास जाना पड़ता है। वो जौहरी को परख होती है कि ये इससे बना पाऊंगा कि नहीं और बना वो पाऊंगा। बहुत कम लोग ही होंगे जो ऐसे करते हैं। और कोई नहीं करता, कोई नहीं बट he is another league बिग altogether। हार्टेड। एक जो होता है ना, कभी क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट होते हैं जब आप एज ए सिंगर एंड समटाइम द कंपोजर, बिकॉज सिंगर आल्सो हैव पुट ऑल his dreams and aspiration to that song. So ऐसा कभी हुआ कि ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ, इतना लड़ाई नहीं हुआ, आपको ये लगा, उन्हें बोला ऐसा है, और वो सॉन्ग बेहतर बन गया, ऐसा कभी मौका आया आपके लाइफ में? बहुत टाइम पे होता है कि डिसएग्रीमेंट्स होते ही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखो, कंपोजर्स का थोड़ा सा ईगो रब करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ, कंपोजर्स थोड़े दिल के थोड़े से वो होते हैं, उनको लगता है कि यार मैंने एक चीज़ क्रिएट करी है, सिंगर मेरे हिसाब से गाए। बट मैं कंपोजर से ये चीज़ का बताना चाहूँगा, आप जितना एक सिंगर को फ्री छोड़ेंगे, जितना उसको खुला छोड़ेंगे, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न ही इज़ प्रोफेशनल सिंगर। तो प्रोफेशनल सिंगर होने का एक कारण है उसका। आपके कॉम्पोजिशन को अगर कंप्लीटली चेंज नहीं कर रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज आप खुला छोड़ो। दैट इज व्हाई रहमान सर इज अ जीनियस, बिकॉज ही लीव्स द सिंगर विद अ पैड एंड अ क्लिक। दिस इज माई कॉम्पोजिशन, सिंग। एक लाइन को आप कितने अलग अलग तरीके से गा सकते हो, उसमें से जो बेस्ट होगा मैं उठाऊंगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गाने को मैं बेहतरीन बना दूंगा। वही बात होनी चाहिए एक अच्छे कंपोजर में। ये नहीं कि एक ही लाइन के पीछे आपकी सुई अटक जाती है कि यार आप वो कण ठीक से नहीं बोल रहे, कण को अच्छे से बोलिए, कण 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 कण। उसके चक्कर में क्या हुआ, पूरा गाना गला थक गया सिंगर का, वो अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएगा। बट कई बार ऐसे हुए हैं। अब सोनियो जो मेरा गाना है राज 2 का, वो गाना जब मैं राजू सिंह जी के पास गया रिकॉर्ड करने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कृष्णा जस्ट लिसन टू दिस ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, सोनू हैज ऑलरेडी संग वर्जन ऑफ इट। तो मैंने जब नाम सुना मैं डर गया। मैंने कहा यार जब ऑलरेडी सोनू भाई ने गा दिया ही है तो ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ, यू नो। तो उन्होंने कोई सुर ऐसा छोड़ा नहीं होगा कि मैं एक्स्ट्रा क्या ही गाऊंगा इसमें। तो मैंने कहा भैया राजू जी, आप सोनू जी का वर्जन सुनाओ ही मत मेरे को, मुझे आप बताओ आपकी कॉम्पोजिशन क्या है, मुझे मेरे तरीके से गाने दो। तो सेड फेयर इनफ। कहते व्हाई डोंट यू वांट टू लिसन टू सोनू? मैंने कहा बिकॉज ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया। उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा गा दिया होगा, तो मैं मैं अपना मेरा माइंड उधर ही रहेगा, मैं उन्हीं चीज़ों को लगाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे अलग गाने दीजिए, तब भी वो गाने डिफरेंट साउंड करते हैं। इफ यू लिसन टू माय वर्जन सोनियो फ्रॉम द हार्ट, मैंने सुना है ना, उसका अंतरा है जैसे इनका है, इनके अंतरे का जो क्रॉस जाता है वो है क्या कहूँ ए जिंदगी, ऐसा जाता ना इनका अंतरा का क्रॉस। मेरा है बिन तेरे कदमों तले राहें नहीं है, तुझ में कहीं है मेरी ज़मीं, तू दे दे मेरा साथ। उसके बाद आ जाता है वो गाना डिफरेंट क्यों साउंड करता है, बिकॉज मैंने जानबूझकर उनसे कहा कि सर आपकी कंपोजिशन है, आपका बच्चा है, आप मुझे मुंह दिखाई कराइए, मैं फिर देखता हूँ कि बच्चे को कैसे तराशना है। क्योंकि अगर इवन इफ सोनू जी की बजाय कोई और सिंगर ने भी गाया होता, अगर मैं वो सुनता तो क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली आप फिर वही नोट्स लगाने शुरू कर देते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो कंपोजर का गाया हुआ गाना आपके सामने आया, आपने उसको अलग तरीके से गा दिया, तो गाना दोनों डिफरेंट साउंड करता है और दोनों ही सुपर हिट अच्छे हैं। जैसे हम लोगों में क्रिएटिव डिफरेंस होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात को माना, तो मैं राजू जी का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को खुला छोड़ दो यार, आर्टिस्ट खुला होता है, लेट देम फ्लाई। सो जो पहला आपने प्लेबैक गाया था ना, और आज इतने साल हो गए ना, तो क्वेश्चन इज, सो ऐसा कुछ है जो आप तब गाए थे और आज आपको एक्साइट्स करता है, और कोई ऐसी चीज आप में जो आपको वरी देता है
जो आप चेंज करना चाहते हैं? देखिए, मेरा गाया हुआ हर गाना मेरा बच्चा है और मैं समझता हूँ कि उस स्टेज पे मुझे उतना ही आता था, मैंने उतना ही डिलीवर किया। फिर विद एक्सपीरियंस मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैंने उस गाने में क्या गलतियाँ करी थी जो नेक्स्ट वाले गाने में उसको मैंने रिपीट ना करूँ, और क्या नया किया था जो उससे बेहतर कुछ अगले गाने में करने की कोशिश करूँ। ये हमेशा एक पिपासा जो है ना वो बनी रहेगी दिल में। तो तभी आपका अगर स्टैग्नेशन आ जाएगा आपकी लाइफ में तो आप एज एन आर्टिस्ट खत्म हो जाते हो। आप कभी ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ आ गया आपको कुछ नहीं आता। एवरी सॉन्ग इज़ न्यू फॉर यू। हर गाने को नया समझ के काम करो, नया गाओ। पिछले गाने में जो गलतियां की थी वो नए गाने में मत करो, दोहराओ, और पिछले गाने में जो अच्छा किया तो उससे बेहतर कुछ इस गाने में करने की कोशिश करो। You know, that is what is music all about. So it's very good actually. Starting again afresh so that freshness. Every song, every is film, different. every serial, every OTT का जो भी आप करते हो for an actor is also new. Absolutely. You can't Totally be, agree. अब हर जगह पे आप नहीं आ सकते तभी हो। तो क्लीशे की बात हो जाती है। क्लीशे नहीं कर सकते ना। हाँ, हर गाना डिफरेंट साउंड करना चाहिए। तो ये जो अभी जो स्ट्रीमिंग एल्गोरिदम एंड ये सब चीजें आई है, उससे आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा इंडस्ट्री में, और आपने ऐसा कुछ फेस किया? कुछ फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ गया। अभी टैलेंट की जगह नंबर्स का ज्यादा वो बहुत ज्यादा। हाँ, ये आने वाले टाइम में वक्त चेंज होगा, लोगों को वापस से टैलेंट की कदर होगी और लोग वापस से टैलेंटेड लोगों को ही काम देंगे और बुलाएंगे। ठीक है, जो नॉन टैलेंटेड लोग हैं वो मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी किस्मत जागी हुई है, कर रहे हैं काम। लेकिन एक टाइम आएगा जब उनको लगेगा कि नहीं यार, खाली फॉलोअर्स होना ही सब कुछ नहीं है। हमारा जो आर्ट है वो खत्म हो रहा है, हमारा आर्ट खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ यू नो वी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पीपल हु कैन डू समथिंग एल्स। आपको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिलता है लोगों को? बहुत मिलता है, आजकल तो ज्यादा हो गया ओवरनाइट सक्सेस। वो आप सक्सेस को किस तरह से तोलते हैं? जिसको अब ओवरनाइट सक्सेस, आजकल सक्सेस का कोई मायने रह नहीं गया है। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस फॉर मी इज कि मैं सुबह काम पे जाऊं, रात को आऊं, सुकून से सो पाऊं, मुझे चिंता ना करना पड़े कि कल मैं EMIs कैसे भरूंगा और परसों मेरा फ़ोन का रिचार्ज कैसे होगा, यू नो, और फलाने आदमी का कॉल आ रहा है उसका उधार मुझे वापस करना है और उससे मैंने पैसे लिए हुए हैं या इसके पैसे मैं खा के बैठा हूँ। वो माइंड आपका नहीं होना चाहिए। आप एक ज़िंदगी में एक बताओ ना, अगर मैं 1000 प्रॉपर्टीज़ खरीद लूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था, मेरी जो मैनेजर हैं निशा, उनसे मैं कह रहा था देखिए यार निशा, हम लोग सक्सेस के लिए भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, सब जगह जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच डू वी नीड? एक 1000 कमरे का भी अगर मेरा घर हो जाता है, कल को माइकल जैक्सन से भी बड़ा सिंगर बन जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर वाले ने इतना बड़ा बना भी दिया, तो उन 1000 कमरों में सोऊंगा तो एक ही कमरे में, राइट? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इतना बड़ा घर लिया हुआ है, लेकिन सो में एक ही कमरे में रहो, लेकिन आई एम लोनली फ्रॉम इनसाइड। आई वांट अ कोजी प्लेस जहां मैं जाऊं तो मुझे अच्छा लगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने बिलियंस कमा लिया, आप बुगाटी वेरॉन में घूम रहे हो, अरे यहाँ सड़कें कहाँ हैं बुगाटी चलाने के लिए, वो भी तो देखो। तो कहने का मतलब है कि आप अगर एक ऑटो में भी जाकर खुश हो ना, आप अरिजीत को देखो, अरिजीत मुर्शिदाबाद में रहते हैं, उनको कितनी बार आप लोगों ने देखा है स्कूटी चलाते हुए। ही इज हैप्पी, ही इज कंटेंटेड। मैं अगर सुकून से जाके रात को सोता हूँ, बस एज ए सिंगर आल्सो, दैट इज सक्सेस। कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, किसी का पैसा नहीं खा गया और अच्छा गाया। जो गाना मुझे मिला, मेरे प्रोड्यूसर खुश हुआ मुझसे, उसने जो पैसे दिए उसको जस्टिफाई किया, मुझे आराम से नींद आ जाएगी, मुझे कोई स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं है। फेयर इनफ, फेयर इनफ, दैट इज सक्सेसफुल, फेयर इनफ। सो एक आज अगर 19 साल का जो कृष्णा था ना, हाँ, उसको अगर आप, हाँ ठीक है, आप 18 की, 16 की, 17 के भी हो सकते हैं। बोलिए। सो मतलब दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है ना। सो इफ यू मतलब 19 साल की अगर कृष्णा आपके सामने आए, आप उसको क्या सिखाएंगे, क्या नसीहत देंगे? 19 साल का कृष्णा का तो पहले तो 2 चांटा मारूंगा उसको बोलूंगा कि वाई वर यू सो नाइव इन योर लाइफ, और तू बेशरम क्यों नहीं बना अपनी जिंदगी में, क्यों मीडिया शाय रहा, क्यों बढ़ चढ़ के तूने लोगों के सामने ये नहीं बोला कि मैंने ये गाया है, मैंने ये वाला काम किया है, और क्यों तूने फूफा शूशा नहीं किया जो कि दूसरे लोग करते हैं, उसकी वजह से उनको सक्सेस मिलता है। आपका यू नो टैलेंट के साथ, काम के साथ, अच्छा काम करने के साथ में आपको एक अच्छा वो होना बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया को बताओ कि मैंने ये गाया है। लेट पीपल नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव डन। यू मीन दैट ओन यू अप, वो गलतियां मैंने खुद को ओन करिए और बताइए, हेजिटेट मत करिए, यही बताएंगे। हेजिटेट करोगे तो आप ही अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कोई आपसे पूछने नहीं आएगा आपने क्या काम किया भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि आपने क्या काम किया। कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, मीडिया के सामने चिल्लाओ, गाना ही शुरू हो जाओ यार,
वो काट ही नहीं सकते। हम्म, पापराजी आते हैं ना ये एयरपोर्ट पे, हाँ, होता आपने है। देखा कोई सिंगर का? हाँ। सिंगर चले जाते हैं, हाय कैसे हैं सर, अरे हेलो फलाना मैम कैसे हैं, फलाना सर कैसे हैं, नहीं, वहां जा खड़े होकर 2 लाइन गा के निकल जाओ। हम्म, वो Music. काट ही नहीं पाएंगे, काम ऐसे करो कि वो Music. काट ही नहीं सकते, वो एडिट ही नहीं कर सकते, वो बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा गा के गया बंदा, हम्म। ये तो हमको डालना ही है। हालांकि धंधा बन चुका है सब, लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ द उसके गेम बीच में भी कहीं ना कहीं किसी का दिल तो पसीजेगा। आप अपना काम कर दो, लेकिन मेक योरसेल्फ हर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये आपने एक अच्छी बात बोली है जी। अपनी भाषा में हम्म। कि ये जरूरी है कि हम अपने आप को आप पे कॉन्फिडेंस रखें। एक सॉल्व हम बोल नहीं पाते, झिझक क्यों होता है कि कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं ना, तो उनको कॉन्फिडेंट होना है, अपने लिए खड़ा होना है। यू हैव टू टेक एक्शन। यू हैव टू टेक एक्शन, दैट्स ऑल। आपको मैं एक बात बताऊं, बताइए। आप बिल्कुल वो जो बाल गोपाल छोटा वाला बच्चा है ना, वैसे हैं आप। हाँ है ना, जो दिल में आता है आप खुल के बोल देते हैं। जी, सो मैंने जो सोचा ना कि बहुत लिबरेटेड है आपका हाँ, वॉइस, हाँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस, because of this. बिकॉज यू डोंट कीप एनीथिंग हियर, आई एम अनफिल्टर्ड यू आर अनफिल्टर्ड, कंप्लीटली, है ना। कंप्लीटली। ऑफ कोर्स इसका मेरे में प्रोज, छल कपट नहीं है, छल इसके कपट नहीं प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। है। हाँ हाँ, होने दो। आप बहुत सारे लोगों को बहुत गलतफहमी हो सकते हैं आपके बारे में, करेक्ट, लेकिन आप हैं ऐसे और आप ऐसे ही रहना, बिल्कुल, ठीक है ना। थैंक यू। तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, थैंक यू। आई थिंक वो आपका बहुत बड़ा धरोहर है। There is a very thin line between making yourself heard या and being disrespectful to someone. या ठीक है, जैसे संजय दत्त सर खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ, मीडिया आ रही है, मीडिया उनसे सवाल करे, मेरे से पूछ नहीं रही है, जब वो बोल रहे हैं उसके बीच में अगर मैं बोल जाऊं That तो वो is गलत है, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। जब वो बोल चुके हैं उसके बाद मीडिया बोलती है थैंक यू सर, नहीं 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 नहीं, नहीं भाई साहब थैंक यू नहीं, मैं यहाँ हूँ, 2 लाइन गा के जरूर जाऊंगा, सर की फिल्म में इतना बड़ा गाना गाया है, सर के आशीर्वाद से मुझे गाना मिला है। सी देयर इज अ वे, दैट्स डिमांडिंग फॉर माई दैट्स व्हिच यू कि आई एम आल्सो हियर, मुझे भी मौका दैट इज दीजिए ओके, बोलने। दैट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। सो एक तो आप किस तरह का लेगेसी फ्यूचर जनरेशन के लिए, मे बी 30 years डाउन द लाइन और 40 years, अभी तो 25 साल मैंने मुझे खुद गाना है, इतना बढ़िया लेगेसी छोड़ जाऊंगा कि आने वाले 100 साल तक रिमिक्सेस बनते रहेंगे मेरे गानों के, इतना तो मुझे पता है। हर इंसान को भगवान ने अलग ब्लेसिंग दी है, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये सबकी तो जर्नी है, अलग है, सबका टाइमलाइन अलग है। सबका मिशन भी अलग है। सो इसी के बारे में आप लाइक आपने म्यूजिशियन के बारे में बहुत बात की, यंग म्यूजिशियन को बार बार आप जो है इसके माध्यम से भी आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू वांट टू सपोर्ट यंग म्यूजिशियंस, दोज हु हैव नो सपोर्ट फ्रॉम एनी सोर्स, येट क्रिएटिंग गुड म्यूजिक, तो कैसे करेंगे आप? मैं सपोर्ट करता हूँ बहुत सारे नए, अभी क्या है कि देखिए मैं बताना चाहूँगा आपके शो के माध्यम से भी, जो भी यूट्यूब देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं किसी भी माध्यम से आप देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम या यूट्यूब, एक चीज़ याद रखना, जब आपको कोई आर्टिस्ट जवाब देता है वो इसलिए देता है कि वो जवाब देना चाहता है, वो किसी मजबूरी में आकर आपको जवाब नहीं दे रहा है। अगर आप एक एस्पायरिंग सिंगर हैं, एस्पायरिंग लिरिसिस्ट हैं, तो इम्पेशेंट मत होइए। अगर आपने किसी को कोई गाना भेजा है, आप जैसे सोचते हो कि भाई आज ही के आज उसका गाना बन जाए और कल के कल रिलीज हो जाए, मैं समझता हूँ सक्सेस के लिए हर इंसान हाथ पैर मारता है और कोशिश करता है कि यार कहीं से एक उम्मीद की किरण आई है, तो शायद कभी भी नहीं करना। यू नेवर नो कब आपने चीज़ें भेजी हुई हैं। मैं कभी भी व्हाट्सएप डिलीट नहीं करता हूँ किसी का, मेरे जहन में रहती हैं चीज़ें। तो कभी भी उस तरह का कोई गाना क्लिक हुआ और उन्होंने बोला कि भाई ये गाना, इस तरह का कुछ गाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ काम करूंगा। मैंने आपके साथ नंबर अगर शेयर किया है तो आप समझना कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए शेयर किया। आई डोंट शेयर माय numbers with anybody whom I don't want to interact. So But you always want remember to this. collab with new people? Yes, of course. I want to help them grow. Okay. How? तुम अगर जेन्युइनली डिजर्व करते हो ये चीज़ कि तुम्हारा जो लिखा हुआ काम है वो इतना ब्यूटीफुल है, या तुम्हारी कंपोजिशन इतनी ब्यूटीफुल और मुझे बहुत अपील कर गई, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए गाऊंगा। हो सकता है निःशुल्क भी गा दूँ, बट जो बेसिक खर्चे वो तुम कर लेना, रिकॉर्डिंग का, स्टूडियो का, प्रोग्रामिंग का, जो भी है। और ये जो लेवल वगैरह मिलने में बहुत मुश्किल होती है नए सिंगर्स के लिए, तो उसके लिए आपका कुछ नहीं, कहना आजकल है? वो बात तो रही नहीं। we have immense respect for T Series. We have immense respect for Z Music and the other music companies, the labels who have nurtured so many singers in India, जिनकी वजह से हम उनके गाने सुनते हैं। उन सबका all due respect, but it is much easier today to become a singer rather than in last 15-20 years Yeah. पहले की अगर आप बात करो तो, Yes. क्योंकि आप
आप अपने घर पे ही म्यूजिक बनाकर, अभी आपको बॉम्बे आके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक छोटे से शहर में बैठे हो, वहाँ पर भी यूट्यूब में अपना गाना अपलोड कर सकते हो, स्पॉटिफाई पे डाल सकते हो, एप्पल पे डाल सकते हो, अपना म्यूज़िक डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और क्या वेट कर सकते हो कि आपकी डेस्टिनी काम कर जाए और क्लिक हो जाए गाना। कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो वायरल अपने घर से ही छोटे-छोटे कर रहे कवर्स हैं। गा के घर से वायरल हुए हैं और आज काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में। वो सोशल मीडिया का ये एक गुड साइड ऑफ द सोशल मीडिया जी। टू रीच। सो अभी जैसे एआई वगैरह सब कुछ आ चुके हैं और हम्म। वो वॉइसेस हम्म। ले रहे हैं, हम्म। आपको उसका क्या लगता है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट? फ़ील कहाँ से लाओगे? एआई में फ़ील कहाँ से प्लास्टिक, लाओगे? इट्स वेरी प्लास्टिक। एआई वो आवाज़ में गवा देगा गाने को, लेकिन वो फ़ील कहाँ से लाओगे? वो शब्दों को बोलना, वो जो नज़ाकत से कोई शब्द को बोलना, कोई गाने को सॉफ्ट गाना, कोई गाने में कहाँ पे किस शब्द को कितना प्रोजेक्शन चाहिए और कहाँ सॉफ्टनेस चाहिए, वो चीज़ें कैसे करोगे ना? वो नहीं कर सकते हो आप। माइंड नहीं है। नहीं, माइंड नहीं। एआई कोई बुरी चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी, जब कंप्यूटर आया था लोग बोल रहे थे सब बेरोज़गार हो जाएंगे, कोई बेरोज़गार नहीं हुआ। कंप्यूटर ने बहुत कुछ हेल्प किया हम लोगों को। फॉर एग्जांपल वॉरफेयर के लिए जहाँ सोल्जर्स की डेथ नहीं हाँ, होगी, वो कम से वो। कम रहेंगे। एआई अगर सब कुछ देख लेगा और बॉर्डर सिक्योर करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ में मेडिकल के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी। करेक्ट। अभी आपके कौन कौन से गाने? अरे कोक स्टूडियो वाला जो है वो कौन सा है? और कोक स्टूडियो का मेरा कोई गाना नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं पेप्सी पीता हूँ, तो लोग मेरे को बुलाए नहीं अभी तक इंडिया में। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, बट कोक स्टूडियो इंडिया में डेफिनेटली आई वुड लव टू सिंग वन सॉन्ग। अभी तो कोक स्टूडियो भारत हो गया, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द यंगर आर्टिस्ट। तो आई थिंक जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन लोगों के साथ भी कोक स्टूडियो, जो प्रॉपर कोक स्टूडियो है, वो भी होना चाहिए। पीछे भी हमारे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने। क्लिंटन का एक गाना था मदारी, इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, और कई और भी गाने जो बहुत पसंद किए गए लोगों के द्वारा। तो मैं समझता हूँ होना चाहिए, और होगा तो डेफिनेटली मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं गाऊंगा। साउथ में मैं गाना चाहता हूँ। बहुत सारे साउथ के कंपोजर्स हैं, थमन एस है और अनिरुद्ध रविचंद्र है, देन डीएसपी है। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ काम करना चाहूँगा। हमारी इंडस्ट्री के यहाँ पर मैं रहमान सर और अमित त्रिवेदी के साथ काम करना चाहूँगा। ये मेरी अपनी दुआ आपके यहाँ से बोल रहा हूँ। रहमान सर को यहीं से बोल दीजिए। थमन सर, आपके लिए गाना चाहूँगा। अनिरुद्ध रविचंद्र, you're brilliant bro, I love to work with you. And DSP bro, कमाल हो आप तो, आपके साथ भी काम करना है। अमित त्रिवेदी, I love your music, I would love to sing a song for you. रहमान सर, you are a legend, आपके लिए गाना चाहूँगा। You are wonderful and I think it will manifest. You don't believe in it, but I believe in it. Netflix पे आपकी एक फिल्म आई है बारामूला, तो उसमें आपने गाना गाया। तो सिंगर को जब बोलता है ना आपकी एक फिल्म है, तो दिल चौड़ा हो जाता है यार। ऐसा लगता है जैसे मैं ही एक्ट किया हूँ उस फिल्म में। अभी अपुन को लग रहा है अपुनिश भगवान है, तो नहीं, तो ये हमारे थॉट में प्रॉब्लम है कि फिल्म का मतलब ओनली एक्टर। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बट मुझे मेरे में एक्टिंग का कीड़ा है, तो मुझे लगता है कभी कभी वो आप पूरा कर लेना और बता दीजिए। कॉमेडी करने का बड़ा शौक है। जोक्स अपार्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल फिल्म डायरेक्टेड बाय आदित्य सुहास जंभाले, एंड आदित्य धर इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड P62 प्रोडक्शन ने फिल्म बनाई है। क्लिंटन सेरेजो इज माई ओल्ड डियर फ्रेंड हु इज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन। उनके साथ उनके जो साथ में उनके पार्टनर हैं बियांका, उन्होंने मिलकर एक बैंड बनाया, इसका नाम है शोर पुलिस। तो शोर पुलिस के नाम से इन लोगों ने म्यूजिक बनाया इस फिल्म का। इसमें 2 गाने हैं इस फिल्म में, एक शिल्पा राव ने गाया है और मेरा जो गाना है उन्होंने, हालांकि यूज़ तो इसको किया है एंड क्रेडिट्स में, बट उसका एक वीडियो वर्जन अभी रिलीज़ हुआ है, कल ही जी म्यूज़िक ने इसको रिलीज़ किया है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप लोग, मैं चाहूँगा कि ज़रूर इसको देखिए। ज़रूर देखेंगे। और सिद्धांत कौशल ने बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे हैं। इट्स अ कश्मीरी फोक। अरनी रंगो श्रवण हिये करूये दर्शन दिए, बरसों से है तरसार दे, शायद कभी वो फिर से दिखे। हालांकि नंबरिंग में गाना यूज़ किया उन्होंने, जो एंड क्रेडिट्स है उसमें गाना यूज़ किया, लेकिन वो फिल्म जब ख़त्म होती है एंड क्रेडिट्स के साथ में, जब आप ये गाना सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माशाल्लाह, इतना ब्यूटीफुल वे इट इज़ डन। इट इज़ ब्रिलियंटली कंपोज्ड बाय क्लिंटन एंड बियांका, देव डन अ ब्रिलियंट जॉब। सक्षम धर ने मिक्स किया इस गाने को। सक्षम धर हैज़ प्लेड रबाब इन द सॉन्ग, गिटार्स आर डन बाय क्लिंटन सेरेजो हिमसेल्फ। ब्यूटीफुल कंपोजिशन। और ये गाना सोमेश हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, ही इज़ अ साउंड इंजीनियर कम सिंगर कम कंपोजर कम म्यूज़िक प्रोड्यूसर इन ओडिशा। मैंने आधा गाना वहाँ किया था
और उसमें कुछ करेक्शंस थे जो मुंबई में किए। उड़ीसा में सोमेश के स्टूडियो में ये वोकल्स करके मैंने क्लिंटन को भेजा, क्लिंटन ने यहाँ पे उसके ऊपर फिर अपना मैजिक किया, सक्षम ने उसको मिक्स किया, और कुछ चीज़ें थी जो उनको बदलनी थी, तो मुंबई आने के बाद गुरु रूम उनका स्टूडियो यहाँ पे बांद्रा में, वहाँ पर गाने को किया है। So congratulations for the release. थैंक यू। All the ऐसे बहुत best. सी बेहतरीन फिल्में अभी आने वाली हैं आने वाले टाइम पे, जैसे नाम नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अच्छा, अभी कुछ पता नहीं, कभी प्रोड्यूसर को पता चला कि भाई यार किसी और सिंगर को गवा लिया तो ना ठीक है, नहीं तो लोग आर्काइव से निकाल के चिपकाएंगे, देख भाई तू तो बोला था ये गाना तूने गाया है, वो तो गाना तो इसकी आवाज में आ गया। तो वो सब चक्करों में हम पढ़ते ही नहीं, हम नाम बोलते ही नहीं, बस छोड़ देते हैं मालिक की एक कृपा से। कहावत है ना, जो है नाम वाला वो वही बदनाम है। तो फिर- लेकिन हम समझते हैं कि नजर इज फॉर रियल, तो हम बताते ही नहीं है कि ये फिल्म में गया, आने दो ना सरप्राइज। अब एक क्वेश्चन जो हम सबको पूछते हैं, इसका नाम है सीमा जिसकी कोई सीमा नहीं। ओके। बेसिकली इट इज अबाउट ब्रेकिंग द बैरियर्स। You have broken many barriers, but that one which you feel that it will remain in your life as a milestone. ऐसा कोई एक moment breaking the barriers. देखिए, कोविड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन इन लाइफ वी ऑल गॉट। आई थिंक कोविड के टाइम पे ही समझ आ गया कि यार जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आपने करोड़ों रुपए भी कमाए हुए हैं और आप घर पे बंद बैठे हो और कहीं कुछ कर नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो जिंदगी ना मिलेगी इसलिए हाँ, दोबारा। वो लाठी मारने वाला बैठा है, तो ध्यान रखो। एंड हम लोग आज बैठकर उस बात को डिस्कस करें तो हम उन खुशकिस्मत लोगों में से भगवान ने जिनको चुना कि वो हेल्दी रहें, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, जिनके परिवार के लोग गए हैं कोविड में, उनको पता है कितना दर्द हुआ होगा। तो आई फील ब्लेस्ड, एंड मैं समझता हूँ कि इसने मुझे तोड़ दिया था कोविड ने, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और उसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत भी चले गए, चले गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई इंडस्ट्री के अंदर, लगी। बहुत कंट्रोवर्सी। चलो, कंट्रोवर्सी इज अ डिफरेंट पार्ट, उसमें हम नहीं जाना पेनफुल चाहेंगे। थिंग्स हैव हैपेंड। पेनफुल थिंग कि हमें अचानक से एक शॉक लगा कि यार इतने लाइफ से भरे हुए एक्टर हमने खोए। उस साल हमने काफी लोगों को खो दिया। फिर थोड़े दिन बाद केके चले गए, फिर सिद्धू मूसेवाला डाइड, एंड सो मेनी गुड आर्टिस्ट पास्ड अवे। ऋषि कपूर जी की डेथ हो गई, यू नो, बहुत सारे लोग चले गए। साजिद वाजिद भाई चले गए। तो वो दौरान में कंप्लीटली टूट गया था। लेकिन देन आई गैदर्ड माई सेल्फ, आई स्टार्टेड कुकिंग, एंड आई अंडरस्टूड के 2-3 घंटा जब खाना आप बनाते हो, और चाहे आप यूट्यूब देख के शुरू करो खाना बनाना, बहुत सारा टाइम आपका डिवोट हो जाता है, और आपका माइंड है ना अलग चीज़ों में निकल जाएगा। जो आप गलत सोच रहे हो ना, वो नहीं करोगे। आप जब ढूंढोगे ना, सारा जीरा नहीं है यार, क्या सरसों कहाँ है, नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो टेस्ट करके देखो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है। तो आप वो फिर सुसाइडल थॉट से ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। अगर खाली बैठ के सोचते रहोगे, और क्योंकि जोमेटो भी नहीं आएगा ना कोविड में, कैसे आएगा? तो मैगी ख़त्म है, क्या करोगे? खुद बनाओ, खुद खाओ, कंसंट्रेट करो, या फिर कुकिंग छोड़ो यार, कृष्णा ब्यूरो ने बोल दिया तो बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप जो बेस्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जिससे कि मेरा ध्यान भटकता है, तो वो चीज़ करो। मतलब जो आपने किया वो उस तरह मैं से। अपने जो किया, मैंने अपनी बात बता दी। मुझे कुकिंग ने बहुत हेल्प किया टू गेट आउट ऑफ दिस। कुकिंग तो एनीवेज एन आर्ट, नो? इट्स एन आर्ट। कुकिंग के जरिए आप दिल के, कहते हैं ना, खाने के जरिए आप दिल तक पहुंच सकते हैं। करेक्ट। तो आपने वो किया, आपने खुद के दिल तक पहुंच गए, खुद ही बनाए, खुद ही। जी। इट्स वंडरफुल। देन वी हैव अ रैपिड फायर। रियलिटी शोज, टैलेंट डिस्कवरी और टैलेंट ओवरलोड। टैलेंट ओवरलोड, पिच करेक्शन इसका टाइटल है। नेसेसरी पॉलिश और क्रिएटिविटी किलर। पिच करेक्शन इज अ नेसेसरी पॉलिश। Easier to break in, a great voice or a great phone camera. तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट आजकल हैज नो वैल्यू, फोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एन आईफोन यू कैन बिकम अ स्टार। Labels today, support system और pressure system. प्रेशर सिस्टम। So आज के जो आर्टिस्ट हैं, more creative है कि more distracted हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्रिएटिव भी हैं और डिस्ट्रैक्टेड भी हैं। दोनों तरह के हैं, प्राणी मिलते हैं। दोनों हाँ, हैं। जी। Reinvent और stay rooted. स्टे रूटेड, Music director today, collaborative और chaotic. कोलैबोरेटिव, Audience today, emotion driven और trend driven. ट्रेंड ड्रिवन, Genius love और algorithm luck. एल्गोरिथम नमः। Seriously. And playback industry, artist first और numbers first. नंबर्स फर्स्ट। इंडस्ट्री नेटवर्किंग, मतलब टफर टू इम्प्रेस ऑडियंस और इंडस्ट्री। ऑडियंस तो इम्प्रेस हो जाती है यार, इंडस्ट्री को इम्प्रेस करना मुश्किल है। बिगेस्ट चैलेंज टुडे, बीइंग हर्ड और बीइंग रिमेम्बर्ड। बीइंग हर्ड, क्रिएटिंग म्यूजिक फॉर टुडेज ऑडियंस और क्रिएटिंग म्यूजिक फॉर द फ्यूचर लिसनर। नो फॉर टुडेज ऑडियंस ऑब्वियसली। फ्यूचर का क्या पता, कल को गाने बंद ही हो जाए। सो लूजिंग क्रेडिट फॉर अ सॉन्ग और लूजिंग
recognition for the effort behind it. So Losing credit for a song is very, very hard, disheartening for a singer. being remembered for one iconic song Hmm. or known for consistent versatility. Consistent, everybody wants to be consistent. A song that tests your voice or a song that tests your heart. Test my voice. Success early in career or success later with maturity. Success later with maturity. Most underrated skill, voice control or emotional intelligence. Emotional intelligence. Creative freedom, having no rules or having clear boundaries. Having clear boundaries. Heartbreak songs or hope-filled songs, which reveals more about an artist. Both, I guess. Both. That's nice, and I think that's the wrap for today. It's really a pleasure. जी मैंने बहुत बहुत सीखा आपसे. जी दूसरी बात है आपकी जो एक उच्छ्वास है ना, जी और जैसे एकदम बच्चे की तरह है. जी जी And I think you need to keep this up जी. without keeping एक any आर्टिस्ट kind में वो of pain. बच्चा होना, जिंदा होना जरूरी दोनों है. जरूरी है. हमेशा. पेन भी जरूरी है. पेन भी जरूरी और है, ये बच्चा भी जरूरी है. लेकिन हाँ. लेकिन मेरा कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत बड़ा गाना गाया है ना. हाँ, तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है. दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. तो आप ऐसे ही गाते रहिए और गाइए, जी. ताकि हम सब जो है ना, जो आवाज़ आपकी है, आवाज़ की धनी है आप, हम उसको सुनते रहे, जी थैंक यू. एक इमोशन से दूसरे इमोशन में ट्रैवल करते रहे, जी है ना, और कुछ सीखते रहे आपसे, जरूर जरूर. और हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपसे सीखे. और जाते जाते ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत और दुआओं की वजह से कहीं ना कहीं मेरे को सक्सेस मिलता है. तो प्लीज़ कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, Krishna, for reminding us that true artistry comes from patience, honesty, and relentless dedication. Your journey, your voice, and your humility continue to inspire both aspiring singers and seasoned musicians. Here is to many more songs, stories, and soulful moments. It's been a joy having you on my show. Thank you. Breaking the boundary, that's our theme. Fearless and bold, we chase our dream. Not scared or timid to reach our goal. तो अपने अपने अंदाज में दिल खोल के बोल. सीमा 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 जिसकी कोई सीमा नहीं.